If Prime Minister Modi is threatened by the walls of JU, it can be considered that he is basically afraid of us. The fact that a sitting Prime Minister has to comment on an university in his speech to gather votes is very concerning. And we are not anti-nationals. We are just anti-establishment. We are just anti every power which tries to subdue us. ये कोई पॉलिटिकल पार्टी को मतलब एजुकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली बात तो ये कि तृणमूल कांग्रेस का जो स्टैंडिंग रिगार्डिंग बंगाली कल्चर है, इट इज कम्प्लीटली बोगस एंड नॉनसेंस। देखिए, फर्स्ट फेज का इलेक्शन हो चुका है और सेकेंड फेज का इलेक्शन 29 अप्रैल है। तो चलिए बात करते हैं, ये जो विधानसभा इलेक्शन इस बार हुआ, ये बहुत पीसफुल इलेक्शन हुआ, फर्स्ट फेज का इलेक्शन। बट ये जो कोलकाता है, इसका जो मुद्दा ये थोड़ा अलग है, हर बार अलग होता है। जादवपुर में तो और भी अलग होता है। तो आपको क्या लगता है, ये 2026 का जो विधानसभा चुनाव है, इस बार मुद्दा क्या, 26 का मुद्दा क्या होना ज़रूरी है? क्योंकि SIR हुआ है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बहुत कुछ बोला जादवपुर यूनिवर्सिटी के बारे में, दिलीप घोष ने भी बोला। तो आपको क्या लगता है, इस इलेक्शन किस मुद्दे पर होना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि I'll speak in English now. Yeah, of course. So the thing is, when Modi said that when Prime Minister, a sitting Prime Minister of our country, is saying something that Jadavpur University is filled with anti-nationals, the walls are filled with anti-national slogans. Actually, if you roam about the campus, you'll see the walls. They talk about Rohit Vemula, they talk about Chuni Kotal, they talk about casteism, they talk against casteism, they talk against war, against Muslims, the oppression of the minorities in our country, especially Muslims. We talk against every issue, every oppression that happens in our country, in our state, and even worldwide. Our walls are filled with Free Palestine slogans. So, if Prime Minister Modi is threatened by the walls of JU, it can be considered that he is basically afraid of us. The fact that a sitting Prime Minister has to comment on an university in his speech to gather votes is very concerning, because first they tried to attack JNU. They have beaten up students over there. We saw in No NRC movement how they beat up students in the during the night time. They entered the library with police forces. They switched off the lights and they beat up students. So we know what the state thinks of us as students. They don't think of us as students. They think of us as a threat. And the thing is that we do not wield guns, we do not wield any swords. We are just students. We just come to universities and colleges to educate ourselves. We talk about every social issue. We talk against war, we talk against oppression, and we will be talking against oppression. We will raise our voices. We'll continue raising our voices. We'll not stop. Just because Prime Minister has said that we are anti-nationals, we'll always be anti-nationals, because if the Prime Minister's definition of the word anti-national is something that you say that is against BJP or against the ruling government, that becomes anti-national. Nowadays, that is the norm. That is the trend. So right now in this election, I think what the BJP is trying to do is during the first phase, they saw that it was comparatively peaceful than like the 2024 or 2021. Compared to that, it was peaceful, and maybe they realized that they couldn't get their way through the election. So they have now started aggressively attacking students, even students who are literally, who have just the pens and the books as their weapons, as their power. And we don't wield any parliamentary power. We don't have nothing to lose. We don't have anything to lose. But what about Mamata Banerjee? Mamata Banerjee, now that is very, what she has done is, throughout the time, she has always spoken against Jadavpur. From 2014, if you see, when Hok Cholera happened in Jadavpur, she had to come right here. She was right here. And she had to apologize in front of the whole JU. That is the part of the students. And even after that, even after 2014, she has continuously attacked JU. If you consider in 2025, when in March Bratto Boshu came, he is our sitting education minister. He came and he trampled upon a student. That has never happened in any campus in our country ever.
Okay, like a sitting minister is trampling upon a student of a student who is currently studying in an university. That has never happened ever before, and we were not asking for anything unjust. We were asking that why the union elections are not happening in our campus for a span of 6 or 7 years, why our labs are not getting any funds from the either from the central or from the state. They are not getting any funds. We are not getting any funds. We are a public university, we are a government university, and the government is not funding us. Why? Because we are anti-nationals, because they think that we are anti-nationals, and funding us would be like a waste of money, waste of resources. They want to push our university towards privatization so that they can hand the whole campus to a corporate, to a big corporate, and they can do whatever they want to. The students' voices will be further subdued. We will not be able to raise our voices. This is the whole strategy. This was also the strategy behind enrolling NEP, that is the National Education Policy. The whole structure of NEP has been designed so that the students do not get a chance to raise their voices against the system. And moreover, Mamata Banerjee has always vilified Jadavpur. In her every speech, in her every address towards students, she has always vilified Jadavpur. Suddenly, during elections, she has realized that to gather votes, she needs to she needs to defend Jadavpur. No, we don't need Mamata Banerjee to defend us. We don't need any person in power, any parliamentary party, anybody, no, nor Modi, nor Mamata Banerjee, nor Kejriwal, nobody. We don't need anybody to defend us. We can defend ourselves. And we are not anti-nationals. We are just anti-establishment. We are just anti every power which tries to subdue us. 2026 में और एक मुद्दा आया पश्चिम बंगाल में, जो मंदिर मस्जिद का मुद्दा, ये मुद्दा चल रहा है, पहले से ही चल रहा है। बीजेपी ने बोला, टीएमसी ये मुद्दा उठाया मंदिर मस्जिद का, टीएमसी बोला, बीजेपी ने मुद्दा उठाया, बट किसी ने ये एजुकेशन सिस्टम 8000 गवर्नमेंट स्कूल बंद हो चुका है, एजुकेशन सिस्टम का हालत बहुत ख़राब है, हेल्थ सिस्टम का हालत बहुत ख़राब है। तो आपको क्या लगता है ये जो मुद्दा है, मतलब ये जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है, ये तो उठना चाहिए, ये तो नहीं उठा, तो आपको क्या लगता है ये उठना चाहिए था इस बार? उठना तो मतलब इस बार क्यों हर बार ही उठना चाहिए, पर नहीं उठता है। नहीं उठता है क्योंकि मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टी को मतलब एजुकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये तो बहुत ही मतलब इजी टू अंडरस्टैंड एक मतलब मामला है कि अगर आप कॉमन पीपल को अगर आप एजुकेट करोगे तो वो आपके खिलाफ बोलेगा। They will take a stand against you if they are educated enough. So not a single political party wants the common people to be educated, and that is a very common fact. I mean, if we take BJP for example, they are a fascist state. They are a fascist power, and they check every box of being a Nazi party. So we have seen in history how Nazi parties have worked. They have banned educational institutions. They have vilified educated people. They have vilified people in academia. It is happening in America as well. Donald Trump has been cutting research funds. Exactly the same thing that is happening in India as well. Jadavpur has been the victim of the cutting of funds. I mean, for I don't know how many years at this point. So obviously एजुकेशन का मुद्दा तो उठेगा नहीं। मतलब अगर एजुकेशन का मुद्दा उठता तो मतलब मैं घबरा जाता, क्यों उठ रहा है, मतलब ये तो उठना तो मतलब मैंने तो नहीं एक्सपेक्ट, बहुत अनयूजुअल हो गया। मतलब ये तो हमारे बंगाल में एक बात बहुत प्रचलित है, उसको बोलते हैं कि भूत के मुंह में राम राम। हाँ, तो वो बात हो जाता। मतलब एजुकेशन, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी टू एवर टॉक अबाउट एजुकेशन। इफ दे आर, आई मीन देन प्लीज वोट फॉर देम, बट मंदिर मस्जिद ये तो मतलब completely unconstitutional. Completely unconstitutional. The nation that India was from its inception in 1947, it has stood against the these religious divisions. It has been enshrined in our constitution that we have the right to our religion. आप मस्जिद में आपको अगर मस्जिद जाना है तो जाइए, आपको अगर मंदिर जाना है तो जाइए। मतलब उसको लेकर पॉलिटिकल मुद्दा बनाने का क्या मामला है। मतलब हमने हिस्ट्री बुक्स में पढ़ा है कि बहुत सारे ऐसे एम्परर्स आए हैं, हाँ, they wanted to establish masjid, they wanted to establish mandir. This is a democratic country. This is not an emperor's playground. We don't want mandir or masjid to to go and we cannot educate ourselves in mandir and masjid. We can obviously fulfill our faiths and whatnot, but that is not how a country progresses ever. So obviously education is obviously the most important issue that is never going to come up in politics ever, obviously.
और एक बात हो रहा है इधर, सनातनी का बात हो रहा है, बंगाली कल्चर का बात हो रहा है। क्यों बंगाली कल्चर का बात होना है 2026 में? मतलब इतने साल बाद बंगाली कल्चर को लेकर बात हो रहा है और 2026 का मुद्दा है, ये बंगाली कल्चर मुद्दा है। आपको क्या लगता है दिस इज सो फनी? हाँ, इट इज़ फनी टू मी। क्यों फनी मैं बोल रहा हूँ? पहली बात तो ये कि तृणमूल कांग्रेस का जो स्टैंडिंग रिगार्डिंग बंगाली कल्चर है, इट इज़ कम्प्लीटली बोगस एंड नॉनसेंस। ये पहली बात जो क्लियर हो जानी चाहिए। हाँ, नहीं, मैं बोल रही हूँ कि तृणमूल का जो स्टैंडिंग है रिगार्डिंग बंगाली कल्चर इज कम्प्लीटली नॉनसेंस, नंबर 1। नंबर 2, बीजेपी इज़ अ फैसिस्ट फोर्स, और ये फैसिस्ट फोर्स हमेशा से, मतलब पूरे दुनिया के इतिहास में हर फैसिस्ट शक्ति ने होमोजेनाइजेशन का काम किया है। यानी कि पूरे देश में एक इंडियन कहने पर हम क्या समझते हैं, एक अपर क्लास हिंदू मैन, और जो ये हिंदी बेल्ट का हो, जो हिंदी भाषा बोलता हो, जो हिंदू धर्म को, जो अपने धर्म को ठीक उन्हीं की तरह मानता हो, वही एक आइडियल इंडियन है। देखिए, इंडिया एक बहुत ही हेटेरोजेनस एक देश है। यहाँ एक धर्म के 100 प्रकार हैं। सिर्फ हिंदुइज्म के नहीं, इस्लाम के भी 100 प्रकार है यहाँ। तो मतलब ये वैरायटी ऑफ रिलीजन बीजेपी का जो मूल मतलब विचारधारा है उसके खिलाफ जाता है। तो ये हेटेरोजेनिटी जो उनके लिए एक थ्रेट है, इसको वो लोग मिटाना चाहते हैं। कितनी दुख की बात है, ये रिसेंटली योगी आए थे हमारे यहाँ, उन्होंने कहा कि बंगाल जो है बांग्लादेश बन जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, अब यहाँ के लोग बांग्ला नहीं उर्दू बोलेंगे। पहली बात तो अगर मैं मान भी लूँ कि ये बांग्लादेश बन जाएगा, तो उर्दू क्यों बोलेंगे? बांग्लादेश बना ही इस मुद्दे पे था कि वो लोग उर्दू नहीं बोलेंगे, वो बांग्ला बोलेंगे। तो मतलब ये है ना कि उनको दुश्मन चुनना नहीं आता। वो बात है कि मतलब वो मुसलमान को अपना दुश्मन बोले, कि बंगाली को अपना दुश्मन बोले, कि उर्दू को अपना दुश्मन बोले। उनको ये हमारा देश इतना ही हेटेरोजेनस है कि ऐसे होमोजेनाइजेशन का मुद्दा लेने वाले पार्टी को अपना दुश्मन चुनना नहीं आता। यही मतलब मेन मुद्दा है। बंगाल हमेशा से ही, मतलब जस्ट लाइक इंडिया, बंगाल हमेशा से ही बहुत ही वैरायटी वाला एक लैंड रहा है। और यहाँ पर मतलब और जो ये जो मतलब बंगाली कल्चर वर्ड जो आपने यूज किया, ये कोई एक बीजेपी single बात नहीं। प्रिटेंड कर रहा है हम लोग बंगाली है, कुर्ता पैजामा मछली ये सब ले। हाँ, तो क्या कुर्ता पजामा मछली ही बंगाली कल्चर है? नहीं है। मैं वही बोल रही हूँ ना कि मतलब जिस मतलब एक रंगा करने की जो ये मतलब कोशिश है बीजेपी की, ये मुमकिन ही नहीं है, स्पेशली बंगाल में, जहाँ धर्म के बगैर भी यहाँ कल्चर इतना फ्लरिश किया है सिंस बिफोर इंडिपेंडेंस। यहाँ बहुत फ्लरिश किया है। यहाँ की भाषा, यहाँ के गीत संगीत, लिटरेचर धर्म के बगैर भी फ्लरिश किया है। इसीलिए बीजेपी का जो एजेंडा है वो यहाँ पे फेल कर जाता है, और फेल ही करेगा, मेरा ये पूरा विश्वास है। मैं मानती हूँ कि तृणमूल कांग्रेस एक गुंडों की पार्टी है, पर बीजेपी की पॉलिटिक्स यहाँ हमेशा फेल करेगी, मेरा ये मानना है, मेरा ये विश्वास है। फर्स्ट फेज का जो इलेक्शन हुआ वो बहुत पीसफुल हुआ, एंड आफ्टर 30-40 इयर्स हम लोगों ने देखा इतना पीसफुल इलेक्शन हुआ। तो आपको क्या लगता है ये जो सेकेंड फेज का इलेक्शन आने वाला है, इसमें क्या इफेक्ट होगा ये SIR को लेकर? और बहुत सारे कुछ चल रहा है पश्चिम बंगाल में, PM नरेंद्र मोदी भी आया है, इधर अमित शाह ने भी कोलकाता में है। तो आपको क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है? तो अगर पूरे तरफ से देखा जाए तो हम क्या देख रहे हैं, एक तरफ से ये कह रहा जा रहा है कि इलेक्शन पीसफुल हुआ है, मगर उसके साथ साथ हमको ये भी देखना पड़ेगा कि SIR हुआ है, जो SIR पहले कभी नहीं हुआ है। तो ये SIR के तरीके से जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम से जो वोटिंग राइट्स है, 9.1 मिलियन लोगों का बंगाल का वोटिंग राइट्स छीना जा रहा है, जो एक डेमोक्रेटिक राइट है, जो एक संविधान हमको देता है। तो वोटिंग राइट छीनने से जो और एक भी चीज़ हम देख रहे हैं कि ये जो पोलिंग हुआ है, ये पोलिंग बहुत हाई पोलिंग हुआ है, हाई पोलिंग रेट है वोट है। मगर हमको तो ये देखना पड़ेगा कि आज SIR के वजह से ये जो टोटल परसेंटेज है उनमें से डिलीटेड हो गया है, वोट हो गया है। हाँ, उसका नाम हाँ, डिलीट हो हाँ, हो गया है। तो हम क्या देख रहे हैं कि मोदी आ रहा है, अमित शाह आ रहा है, सभा कर रहा है, वहाँ से ये कह रहा है कि पहले दिन हमने देखा कि जादवपुर यूनिवर्सिटी के नाम में वो उन्हें पूरा किया। तो ये क्या हो रहा है? एक वोट जो होना है, ये वोट तो
जो बेसिक इशू है, हाँ, जो मतलब मुद्दा नीडेड है, जो है। जो मुद्दा है, जो उन मुद्दे में बात होना चाहिए, मगर वो एक यूनिवर्सिटी के अंदर क्या चल रहा है ये बोल रहा है, वो जॉब पे बात नहीं कर रहा है, वो एजुकेशन पे बात नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि जादवपुर में एजुकेशन नहीं हो रहा है। तो एजुकेशन होने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो फंड चाहिए, वो फंड नहीं मिल रहा है। और एक तरफ हम जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट जो तृणमूल सरकार का है, वो उससे भी हमको कुछ मिल नहीं रहा है। एजुकेशन तभी चलेगा जब लोग आके फ्री में पढ़ सकेंगे, ठीक से पढ़ सकेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, लैब में काम कर सकेंगे। तो तृणमूल सरकार एक तरफ से स्टेट से फंड कट हो रहा है, दूसरी तरफ एनईपी लागू हुआ है सारे भारतवर्ष में, और प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो ऐसे हम देख रहे हैं। वो तो अभी जो बाकी है कि 29 को हमारा सेकेंड फेज का इलेक्शन है, तो ये इलेक्शन जो हो रहा है ये तो डेमोक्रेटिक नहीं हो रहा, क्योंकि एसआईआर में इतना लोगों को नाम अगर डिलीट हो गया तो उनका वोटिंग राइट छीन लेने से हम एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन तो कहला नहीं जा सकता है। तो और क्या देख रहे हैं कि ये इलेक्शन में जो है पॉलिटिकल पार्टीज जो है, सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो पावर के लिए बोमा बारूद पिस्तौल का यूज़ करते हैं। जो वोटर्स है वो वोटर्स को सिर्फ वो जो वोटर्स की तरफ ही यूज़ करते हैं, उनको इंसान की तरफ बर्ताव नहीं करते। तो यही कहना है कि एसआईआर से जितने लोगों का नाम डिलीटेड हुआ है, और उनको हम ये पता है हम लोगों को कि पहले जब एनआरसी करना चाहे थे ये आरएसएस बीजेपी, ये फैसिस्ट जो उनका मुद्दा था, तो वो बंगाल के लोगों ने एक साथ मिल के जो आंदोलन किया था, वो आंदोलन से वो एनआरसी बैक हो गया था। मगर हमने देखा कि बिहार में भी एसआईआर हुआ। जो ये एसआईआर का मुद्दा है ये पहले कभी नहीं हुआ। पहले इंटेंसिव रिवीजन हुआ है, मगर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कभी नहीं हुआ है। तो हमारा जो सिटीजनशिप का राइट्स है, तो वो तो हमारा संविधान हमको देता है कि पहले का जो संविधान का एक नियम था कि हमारा बार्थ राइट से हमारा सिटीजनशिप मिलता है। तो ये भी सब कुछ हटा चुके हैं वो लोग। तो ये जो करना चाहते हैं कि पहले वोटर राइट को एक छीन लेंगे लोगों से, इसके बाद वो जो करेंगे कि इनका सिटीजनशिप पे क्वेश्चन उठा रहेंगे। तो मुझे लगता है कि ये मुद्दा सामने आना चाहिए। जो लोगों का हाथ में जो जॉब नहीं है, लोगों का जो भूखा पेट जीना पड़ रहा है, इतना माइग्रेंट वर्कर को, बंगाली माइग्रेंट वर्कर को दूसरे स्टेट में जाकर वहाँ पर उनको उनके साथ बहुत बुरे बर्ताव किया जा रहा है, क्योंकि सिर्फ बंगाल की एक बॉर्डर स्टेट है इसलिए। तो मुझे लगता है कि ये सब मुद्दे पे बात होना चाहिए। इस इलेक्शन में सिर्फ वोट के बारे में बात नहीं होना चाहिए। तो मुझे यही कहना है।